مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب۔ ہماری فہرست میں شہنشاہ خطابت کے بے مثل بادشاہ حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد مستقیم صاحب استاد عربی ادب جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ تشریف رکھتے ہیں۔ غالباً وہ میری فہرست کی آخری کڑی ہیں اور اجلاس اختتام کی جانب بڑی تیزی سے رواں دواں ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا اسی وقت پر ہم اجلاس مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن دوستو ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، ابھی ہمارے محسن کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی وسیم صاحب نے بڑا جوشیلا بیان کیا اور آپ حضرات نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کیا۔ یہ مدرسہ اصغریہ للبنات جس میں غالباً میری دوسری حاضری ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بطور امتحان اگر قاری مظہر صاحب دامت ذلہ کو کوئی اعتراض نہ ہو اور آپ حضرات کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کے اندر جو ننھی ننھی بچیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، گویا اس میں پڑھانے والی بھی خاتون ہیں اور پڑھنے والی بچیاں ہیں، اس میں مردوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن قاری مظہر صاحب اس مدرسے کے مدیر اعلیٰ ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے یقیناً، کیونکہ ہم مدرسے کا الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ آپ حضرات نے تعاون بھی کیا، تھوڑا کیا یا زیادہ کیا اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ مدرسے کے اندر تعلیم کیسی ہو رہی ہے، ہم دیکھنا چاہیں گے بطور امتحان۔ تو آئیے ہم تمام جتنی بھی لڑکیاں 100-150 لڑکیاں پڑھتی ہیں ان کو تو ہم نہیں چیک کر سکتے کیونکہ وقت کی قلت، صرف ساری لڑکیوں میں سے ہم ایک لڑکی اٹھانا چاہتے ہیں، اسی سے معلوم ہو جائے گا کہ مدرسے کے اندر بچوں کو کس سانچے میں ڈالا جا رہا ہے۔ آئیے تو میں آواز دیتا ہوں، اسی مدرسے کی ایک طالبہ ہے عزیزہ سمرن سلمہ بنت عمران، یہ بچی آئیں اور اپنا پروگرام پیش فرمائیں۔ کہاں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام اور طالب علم بھائیوں، میں آج خاص طور سے اپنے طالب علم بھائیوں سے خطاب کرنا چاہوں گی اور آپ کو یہ بتاؤں گی کہ طالب علم کون تھا، کون ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں طالب علم۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے روبرو ہماری حاضری ہے۔
समझने और याद रखने की भी जरूरत है, आइंदा नस्लों की भी जरूरत है। लोग समझते हैं कि मस्जिद मदारिस की चार दीवारियों में बगैर प्रेस के सिलवटों वाले कपड़े पहने हुए और सर पर टोपी ओढ़े हुए और चेहरे पर दाढ़ी सजाए हुए और शलवार टखनों से ऊपर किए हुए ये जो लोग नजर आते हैं कोई दूसरी मखलूक है, तरक्की नहीं जानती। ये लोग कदामत परस्त हैं, रजात पसंद हैं। इन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, ये इंटरनेट नहीं जानते। कैसे खुशमिजाज लोग हैं कि टीवी नहीं देखते। ऐसे गैरतमंद लोग हैं कि अपनी अम्मा को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को बगैर बुर्का के बाहर आने नहीं देते। अजान देना, इमामत करना इनका काम है। इनकी दौड़ सिर्फ मस्जिद तक है, इसके आगे उनका दिमाग काम नहीं करता, इनकी सोच काम नहीं करती। ये फिरका परस्त लोग हैं, मामूली बात पर जज्बात में उभर जाते हैं। ये तालिब इल्म की वो शक्ल सूरत है जो मुसलमानों के जहन में बैठी हुई है। अगर किसी से कहा जाए कि आप अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करो तो वह इनकार कर देता है और कहता है पहले दुनिया की समझ आने दो, दुकान और कारोबार का थोड़ी बहुत इल्म आने दो, थोड़ी बहुत उसे अंग्रेजी सीखने दो। मैं उसे मदरसे में भेजकर उसकी जिंदगी बेकार बनाना नहीं चाहता। ये तालिब इल्म की वो शक्ल सूरत है जो अमेरिका ने बताई, अंग्रेज ने बताई, यहूदियों ने बताई, जिसका हमारे मुसलमानों ने भी एतबार कर लिया है। इसलिए आज स्कूल कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले तलबा से चिढ़ते हैं, उनको देखकर परेशान हो जाते हैं, उनकी शक्ल सूरत को देखकर ताज्जुब में पड़ जाते हैं। आओ, अगर तुम्हें तालिब इल्म की तारीख देखनी है तुम्हें थोड़ा सा सफर करना होगा, मक्का की वादी की तरफ जाना होगा। उस जमाने में जब वहाँ एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान कर चुका था तो इसी वक्त दारे बनी अरकम में पहला मदरसा बन चुका था। इस मदरसे का तालिब इल्म कौन था? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु थे, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु थे, अली रज़ियल्लाहु थे। इस मदरसे में ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु पढ़ते थे। इस मदरसे में हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ने सबक लिया था। इस मदरसे में सहाबा रज़ियल्लाहु ने अपने आप को तैयार किया था। फिर लोगों ने कहा कि मदरसा बंद कर दिया जाए, मदरसे पर पाबंदी लगा दी जाए। अबू जहल ने कहा मदरसा बंद करो, तुम गालिब आ जाओगे। कुरान न सुनो न सुनने दो, कुरान न पढ़ो न पढ़ने दो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मगर दीवाने चल पड़े मदीने की तरफ, मदरसा सीने में लिए हुए। वहाँ मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु पहला मदरसा खोले बैठे थे, फिर जाकर दूसरा मदरसा कायम हुआ। वहाँ पढ़ाने वाले मुहम्मद रसूलुल्लाह थे। जिब्राइल ने सबक लाया करते थे, सबक पूछा भी करते थे, शागिर्दों को पढ़ने का तरीका भी बताया करते थे। फिर जाकर दूसरा मदरसा कायम हुआ। दुनिया के सारे लोग परेशान हो गए, मदीने के मुनाफिक परेशान हो गए कि मक्का वालों की जान छुटी तो मदीने वालों पर आ पड़ी, ये मदरसा करेगा क्या? मदरसे ने बता दिया कि हम सब कुछ करना जानते हैं। उस अबू हुरैरा को देखो, उस अनस रज़ियल्लाहु को देखो, उन मदरसे के तलबा को देखो कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है और बातें करते हैं। और तालिब इल्मो, तुम्हारा दिमाग खराब है मगर तारीख ने देखा। यही तलबा थोड़ी देर के लिए किताबें बंद करके हाथों में तलवार लेकर बदर के मैदान की तरफ जा रहे थे और इसी परचम का सबूत दे रहे थे, जिस परचम में सफेद रंग इल्म की निशानी और काला रंग जिहाद की अलामत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, वही तालिब इल्म था कि सीख रहा था और याद कर रहा था। ये जो आज हद्दसना के खुशबूदार आवाज लगती है, यह हमें बताती है कि मदरसा बंद नहीं हो सकता, इसलिए कि हमने नबी के अल्फाज को याद रखा है, नबी की वफाओं को याद रखा है, नबी के किरदार को याद रखा है, नबी के गुफ्तार को याद रखा है। खुदा की कसम, हमने नबी के तलवार को भी याद रखा है, नबी की जंगी टोपी को भी याद रखा है, नबी के अमामे को भी याद रखा है, नबी के सर पर लगने वाले जख्म को भी याद रखा है। रब्बे काबा की कसम, हम उस लुआब को भी नहीं भूले जो नबी तलबा में तकसीम किया था, उस खून को भी नहीं भूले जो नबी तलबा में तकसीम, जो नबी दीन के खातिर लुटाया करते थे। दुनिया वालों, तुम दीनी तालिब इल्म की नज़ीर और मिसाल नहीं लगा सकोगे, इसलिए कि उन तालिब इल्मों ने जिनसे समंदरों को अबूर किया है, जिनसे तंगे और घाटियों को अबूर किया है, जिनसे इम्तिहानात को पास किया है, तुम उसका तस्वुर भी नहीं ला सकते हो। ये मदरसा चलता आ रहा है। मदीने वालों ने साजिश की कि मदरसा बंद कर दिया जाए। मदरसे वाले के घराने से एक तालिब इल्म खड़ा हुआ और कहा कि आका हुक्म दीजिए, गर्दन
उड़ा दो उन मुनाफिक की जो मदरसों की हिफाजत के लिए खुदा फिरौन के घर मूसा खड़ा करता है। होता है कि नहीं होता? ऐसा माजी में हुआ कि नहीं हुआ? मुसलमानों, क्या कुरान पढ़ने वाले कहीं बिक गए हो? हाय, हुजूर के जमाने पे सूली पर लटक कर भी कुरान को नहीं भुलाया। देखो हमारे उस्ताद इमाम अबू हनीफा को देखो, उनका जनाजा दमिश्क की जेल से उठाया मगर सर नहीं झुकाया। मसलिहत पसंदी के नाम से दीन को झुकाने वालों, किसका नाम लेते हो, किसका किरदार बनाते हो? देखो हमारे उस्ताद इमाम अबू हनीफा को देखो, अपनी हक बात पर रहे मगर सर नहीं झुकाया। ऐसा पैगाम देकर गए कि आज उनके मानने वाले सर कटवा तो लेते हैं मगर सर झुकाते नहीं। फिर हमारे इमाम अहमद बिन हंबल को देखो कि कोड़े खा रहे हैं, कोड़े खाकर भी दिन को नहीं बदला, जिस्म लहूलुहान है, जिस्म जख्मी है, मगर इमाम अहमद बिन हंबल वहां पर इस्तिकामत इख्तियार करते रहे। फिर हमारे उस्ताद इमाम मालिक को देखो, हमें डराने वालों किसका नाम लेते हो? हमारे उस्ताद को देखो कि उन पर कैसा जुल्म ढाया गया, गली गली कूचा कूचा उन्हें रुस्वा करने के लिए घुमाया गया, मगर उंगली भी खड़ी हुई थी, गर्दन भी तनी हुई थी, मगर इमाम मालिक पर हक का कलमा जारी था। इसी तरह जारी था जिस तरह हुआ करता था। तुम लोग मदरसा को खेल समझ बैठे, मदरसे की तारीख से तुम वाकिफ नहीं हो, मदरसे के अंदाज से तुम वाकिफ नहीं हो, मदरसे के किरदार से तुम वाकिफ नहीं हो। अफसोस तो यह है कि आज का हमारे तालिब इल्म भाई अपने मदरसे के किरदार से वाकिफ नहीं है, उसकी तारीख से वाकिफ नहीं है। पूरी तारीख को छोड़कर हम हिंदुस्तान की तारीख आपके सामने पेश करते हैं कि हमारे उलमा दरख्त पर लटकाए गए, उनकी खालें नोची गई, मगर तुमने अंग्रेज को आते वक्त भी सलाम किया और जाते वक्त भी सलाम किया। मुसलमानों, इन उलमाओं की इस्तिकामत को याद करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जज़ाकल्लाह।